वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद क्षमा। डियर चिल्ड्रन, आज हम आपके फ्लेमिंगो का चैप्टर द रेड ट्रैप डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस मूव. The objectives of learning in this chapter is that there is a peddler, there is a vagabond who can be understood as a helpless person who acted nobly and respectably to redeem his lost conscience. We should also understand that if we want respect for ourselves, we will have to respect others also. And we shall also learn that acting honorably alone can redeem our glory and esteem. Now, the topics which we have covered is introduction, getting to know the author, the story in a nutshell, the theme, characterization, and critical analysis. Introduction about the chapter is Red Trap is a story that underlines the belief that essential goodness in human beings can be aroused through sympathy, understanding, and love. हर किसी को किसी तरह से sympathy की understanding की और love की जरूरत होती है. And if we want somebody to act honorably and without, you can say, any ill feelings, then we have to respect others also. This is a story set amidst the mines of Sweden. It portrays how human beings are prone to fall into the trap of temptation. We all are prone to fall into temptation. Temptation उसे कहते हैं कि आपको अच्छा घर अच्छा लगता है, riches अच्छे लगते हैं, joys अच्छे लगते हैं, ये सब हमारे लिए temptations हैं as per the chapter. The writer has also, in a very subtle manner, conveyed that a clean conscience can always safeguard a person against greed and avarice. Now, let us see author. Selma Lagerlöf, she was a Swedish author and a teacher. She was first female writer to win the Nobel Prize in Literature. She worked as a country school teacher at a high school for girls in Landskrona from 1885 to 1895 while honing the storytelling skills, with particular focus on the legends she had learned as a child. Now the story in a nutshell, which is a story of a homeless wanderer. Wanderer कहते हैं जिसके पास कोई अपना घर नहीं होता, कोई permanent घर नहीं होता. And he was like selling rat traps for his living. उसके cheeks were hollow and he had a look of starved man. क्योंकि वो हमेशा उसको पेट भर खाना नहीं मिलता था, तो उसके जो cheeks थे वो बिल्कुल hollow थे और he gave a look of a starved man, जैसे कि कोई बहुत ज्यादा भूखा हो. और क्या करता था वो, मटेरियल इकट्ठा करता था स्टोर्स वगैरह से या बिग फार्म्स वगैरह से, एंड ही यूज्ड टू मेक द रेड ट्रैप्स, और उसी तरह वो सरवाइव करता था. बट वो इनफ नहीं था, कभी कभी उसे बेगिंग भी करनी पड़ती थी और कभी कभी उसे चोरी भी करनी पड़ती थी. द वर्ल्ड वॉज नेवर काइंड टू हिम. काइंड का यहाँ पे काइंड का मतलब है कि वेयर एवर ही हैड गॉन ही वॉज बीइंग चेस्ड अवे बाय द पीपल और द पुलिस. क्योंकि ऐसे लोगों को हम अपने घर के पास से, अपने पास से, या सड़क पे या किसी दुकान के सामने बैठे होते हैं तो हम हटा ही देते हैं. Now one day when he was walking, he was thinking about the rat traps. वो जो rat traps बनाता था सामान इधर उधर से इकट्ठा करके, तो he was thinking about the rat traps. Suddenly एक आइडिया उसको आया और उसने सोचना शुरू किया, and he thought ill about this world. ill क्योंकि कभी इस वाले वर्ल्ड ने कभी भी लोगों ने उसको रिस्पेक्ट नहीं किया था. जहां भी वो जाता था उसको हमेशा चेज अवे कर दिया जाता था. और वो ये सोच रहा था कि ये वर्ल्ड इट इज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप. ये वर्ल्ड जो है, ये दुनिया जो है, एक बिग रेड ट्रैप की तरह एक्ट करती है. जो भी इसको टच करता है, द ट्रैप इज क्लोज्ड ऑन टू हिम. और उसको इतना अच्छा लग रहा था ये सोच के, बिकॉज ही वॉज अम्यूज्ड टू थिंक ऑफ सम पीपल हु वर ऑलरेडी ट्रैप्ड. और वो ऑलरेडी ट्रैप्ड लोग कौन थे? जिन पे बहुत ज्यादा रिचेस थी, बहुत सारा उनपे लग्जरीज थी, तो वो ऑलरेडी ट्रैप थे. एंड ही वॉज थिंकिंग अबाउट सम पीपल दोज हु वर ट्राइंग टू रीच द बेट इन द ट्रैप, जो अभी भी दे वर सर्कलिंग अराउंड कि उन्हें भी उतने ही रिचेस वगैरह मिल जाए. तो ही वॉज क्वाइट अम्यूज्ड एट द आइडिया. नाउ it was a cold December evening and he was trudging along, he was walking along the road and suddenly उसको एक कॉटेज दिखाई दी रोड साइड के पास. उसने वहां पे नॉक किया and he was welcomed by the lonely crofter. क्रॉफ्टर जो था उसने उसको बहुत ज्यादा वेलकम किया बिकॉज ही वॉज अ लोनली पर्सन, ही डिड नॉट हैव अ वाइफ और अ चाइल्ड. तो उसको अच्छा लगा कि उसकी कोई लोनलीनेस को बांटने आ गया था. उसने उसको बड़ा वेलकम किया एंड ही वॉज गिवन हॉट पॉरेज एंड इवन टोबैको टू स्मोक. दे प्लेड कार्ड ऑल्सो. क्रॉफ्टर बहुत जेनरस था और उसने ही वॉज लाइक उसने अपनी बताया अपने बारे में कि मेरे पास एक काव है. आई यूज्ड टू वर्क इन रामसिजो आयरन मिल, नाउ आई डोंट वर्क. नाउ आई हैव अ काव एंड आई सेल द मिल्क टू द क्रीमरी. और उसमें उसने कहा कि मेरे को अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं और मेरे पे अभी भी
ना ही वांटेड द पेडलर टू बिलीव हिम कि मेरे को अच्छे पैसे मिलते हैं, तो उसने दिखा भी दिए। एक पाउच था, उसमें उसके पास 30 क्रोनॉर रखे थे। 30 क्रोनॉर इज ए करेंसी डियर चिल्ड्रन, स्वीडन की करेंसी है 30 क्रोनॉर्स, और वो उसने उसको दिखाए, और फिर से मनी उसने पाउच में रख के उसको पाउच को उसने हैंग कर दिया एक नेल पर नियर द विंडो फ्रेम। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों उठे एंड दे वर द लाइक दे बोथ वेंट टू देयर ओन डायरेक्शन। क्रॉफ्टर ने कॉटेज लॉक करी और अपनी काव को मिल्च करने चला गया था। नाउ पेडलर, सिंस ही वाज एज वी हैव डिस्कस कि वो थोड़ा थीवरी भी करता था, थोड़ी स्टीलिंग भी करता था, थोड़ी बैगिंग भी करता था, तो उसको अब लगा कि मैं इस कॉटेज में से 30 क्रोनॉर चुरा लेता हूँ। तो अगेन ही वाज टेम्प्टेड बाय द बेट ऑफर्ड बाय द ओल्ड मैन। तो दिस वाज अ टेम्पटेशन, ये उसके लिए एक टेम्पटेशन थी, और उसको गया, उसने वहां पे विंडो पेन को स्मैश किया, पाउच में से 30 क्रोनॉर निकाले और वापस वो चला गया। नाउ ही वाज वॉकिंग ऑन द रोड, देन ही थॉट दैट he should not walk on the main highway because he had a fear of being caught by the police. और उसके बाद वो फॉरेस्ट में चला गया, which was like impenetrable prison, और उस फॉरेस्ट में वो घूमता ही रहा and he did not find a place to come out. And he was damn tired, he was extremely tired, he was tired to death, you can say. और वो बैठ गया था। सडनली उसको थोड़ी सी रेगुलर थंबिंग की आवाज आई हैमर की, और उसको समझ में आ गया दैट नियर बाय देयर इज एन रामसजो आयरन वर्क्स, और मिल के डायरेक्शन में वो चल दिया, आवाज के डायरेक्शन में वो चलता चला गया। एंड फाइनली ही रीच टू द फॉर्ज इन, और जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पे वो फर्नेस के पास आराम करने लगा। नाउ आयरन मास्टर जो था वो नाइटली राउंड्स पे आता था, बिकॉज ही हैड अ डिजायर टू शिप द बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन टू द मार्केट। तो वो रात को इंस्पेक्शन के लिए आया था। उसने देखा कि एक रेग्ड पर्सन, एक बिल्कुल हु लुक्स लाइक अ बेगर और थीव, वो बिल्कुल फर्नेस की डिम लाइट में लेटा हुआ है, और उसने उसको अपना पुराना रेजिमेंटल कॉमरेड सोच लिया था। ना उसने उसको इनवाइट किया अपने घर के लिए, बट देन पेडलर डिड नॉट वांट टू गो। उसको पता था कि मैं जाऊंगा क्योंकि मैं तो इसका पुराना जानकार है ही हूं ही नहीं, आई एम नॉट हिज रेजिमेंटल फ्रेंड, so if I'll go to his house I'll be definitely being caught. But iron master चला तो गया। then he sent his daughter एडला विल्मनसन को उसने भेजा थोड़ी देर बाद। एंड आयरन मास्टर को ये पता था कि मेरी जो डॉटर है उसकी जो परसुएडिंग स्किल्स हैं दे आर बेटर देन मी, तो वो उसको लेके गई, और उसने यही कहा कि आप हमारे घर चलिए, और क्रिसमस इज सून इट इज देयर, क्रिसमस ईव पे आप हमारे साथ जस्ट हैव सम पुडिंग सम गुड फूड विद अस, और हमारे साथ चलिए। नाउ दिस गर्ल एडला विल्मनसन, शी हैड अ वेरी, यू कैन से, उसकी जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स थी वो काफी अच्छी थी। उसको उसी दिन लग गया था कि ही इज नॉट अ मैन हु मस्ट हैव बीन, यू कैन से, लिटरेट और एजुकेटेड। He looked like as if he has run away from the prison. But still, she thought that Christmas is round the corner, so I must take him home and offer some good food. वो घर लेके गई है। आयरन मास्टर ने अपनी मतलब वेले से कहा है, अटेंडेंट से कहा कि उसको आप अच्छे से कपड़े दीजिए, उसको बेथ करिए उसको, एंड देन वी शैल सी दैट व्हाट काइंड ऑफ अ वर्क वी कैन फाइंड फॉर हिम। जब वो बाहर आया तो ही वॉज लाइक वेल ग्रूम्ड पर्सन, और आयरन मास्टर को इस वक्त अपनी जो मिस्टेक था उसका रियलाइजेशन हो गया दैट ही इज नॉट माई ओल्ड एक्वेंटेंस, मेरा ये कोई पुराना रेजिमेंटल फ्रेंड नहीं है। नाउ ही वांटेड पेडलर टू लीव हिज हाउस इमीडिएटली, ही वाज क्वाइट एंग्री, और उसने कहा कि मैं शेरिफ को इन्फॉर्म कर दूंगा, ये कर दूंगा। बट एडला डिड नॉट लाइक हर फादर्स आस्किंग द पुअर पेडलर टू लीव, क्योंकि एडला को ये लगा था कि इट इज अनफेयर टू टर्न हिम अवे, उसको भेजना अच्छी बात नहीं है, बिकॉज उसको वो इनवाइट करके लेके आई है, एंड शी वांटेड हिम टू स्टे बैक फॉर क्रिसमस। In the evening when Christmas tree was lit, Miss Edla Williamson told him that her father wanted him to keep the suit he had given for wearing as a Christmas present. तो उसने उसको बहुत ही लव और अफेक्शन के साथ ट्रीट किया, उसको एज ए रिस्पेक्टेबल पर्सन की तरह ट्रीट किया, और उसको मतलब जो क्रिसमस ईव को जो भी उनका गुड फूड बना था वो सब ऑफर किया, और ये कहा कि ये जो सूट आपने पहना हुआ है, यू कैन टेक इट विद यू एज अ क्रिसमस गिफ्ट। नाउ there was
मतलब उसको बहुत ही अमेजमेंट लग रहा था, बहुत ही सरप्राइज हो रहा था, बिकॉज देन यू नो द बोथ द फादर एंड द डॉटर हैड गॉन टू द चर्च, और वहां पे उन्हें पता चला कि वो एक पेडलर है जो जिसने की रेड ट्रैप्स हंग किए हुए हैं. ही इज अ थीफ एंड ही हैज स्टोलन 30 क्रनोर फ्रॉम द क्रॉफ्टर्स हाउस. ना वो घर पे आए तो उन्हें लगा कि ये तो सारा की उसने ये सब वो सब घर से चोरी करके ले गया होगा. द फादर वॉज एनॉयड, और उसको अच्छा नहीं लग रहा था फादर को कि वो जो पेडलर है वो थीफ है. रादर ही वॉज एंग्री विद एडला ऑल्सो. पर जब वो घर पहुंचे तो टू देयर अमेजमेंट he had not taken anything, rather he has left a packet as a Christmas gift for Miss Edla Wilminson. She opened the package and she found a small red trap containing 10 kronor crumpled notes and a letter. In the letter, the peddler requested Edla to return the money to the crofter, who kept the money pouch hanging on the window frame as bait for the poor wanderers. तो उनको बहुत मतलब they were surprised, the father and the daughter, जब वो चर्च से लौट के आए उन्होंने देखा कि उसमें एक रेड ट्रैप है, रेड ट्रैप पैक हुआ था, उसमें एक पेपर था, उसमें एक लेटर था एडला के लिए, और उसको ये लिखा था कि इसमें 30 क्रनोर हैं, वो आप वापस कर दीजिए. शी वॉज लाइक सरप्राइज्ड. इट वॉज लाइक ए क्रिसमस गिफ्ट गिवन एज ए ग्रेटिट्यूड टू मिस एडला विल्मिंसन, बिकॉज उसकी काइंडनेस और ह्यूमैनिटी की वजह से पेडलर वॉज एबल टू रिडीम एंड रेस्क्यू हिमसेल्फ फ्रॉम द ट्रैप ऑफ मॉरल डिग्रेडेशन एंड रिगेन अ बिट ऑफ सेल्फ एस्टीम एज अ ह्यूमन बीइंग. उसी की लव, काइंडनेस, सिंपैथी की वजह से he was able to redeem and rescue himself from the trap of moral degradation. moral degradation यहाँ पे वो चोर की तरह एक बनने वाला था, और but it was only because of the love, respect and kindness shown by Edla Wilminson he was able to redeem his dishonest ways. उसने अपने dishonest जितने भी तौर तरीके थे उनको छोड़ दिया था. And he finally signed the letter as a Captain Von Stele. आपको ये पूछा जाएगा कि कैप्टन वॉन स्टेले की उसने साइन किया, क्योंकि बिकॉज ही वांटेड टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ एडला विल्मिंसन कि आपने जो मेरे लिए किया, आई विल try and prove myself for that. Now let us discuss the theme. It's an appropriate title because the author has used the metaphor of red trap to highlight the human predicament of the functioning of the world and the society. Just as a rat is being fooled by bait to trap, most of the human beings fall into the trap of materialism. The story also revolves around the incident of a peddler getting trapped due to his greed. Hence, the title is just appropriate. Also, it is worth noticing and remarkable how the story ends with the note of hope. ये स्टोरी एक होप पे एंड होती है, बिकॉज फाइनली ही हैड साइंड हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेले, एंड दैट इज अ काइंड ऑफ अ प्रॉमिस टू Miss Edla Wilminson that I will live up to the expectation of yours. The story highlights the theme like human loneliness, status, treatment meted out to have not sent, careless attitude of society and government towards such people. तो गवर्नमेंट का और सोसाइटी का एक careless attitude है, बिकॉज हमने शुरू में डिस्कस किया था कि wherever he had gone he was being chased away by the people and police. तो ये careless attitude है. हैव नॉट्स को, लोगों को, इनको थोड़ा सा अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, इनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनको ढंग से एस्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट को जरूर कोशिश करनी चाहिए. There is one more theme that man is inherently good by nature. The society and environment make them bad. Human goodness and kindness can bring about the change in their attitude. Now, characterization: the peddler. He's a person who sold rat traps to make his ends meet. His clothes are ragged, his cheeks are sunken, and hunger gleams in his eyes. If selling rat trap doesn't get him enough money, he resorts to begging and petty thievery. Being pragmatic in his approach towards life, he least bothers about his moral values. He never hesitates to do anything to earn his daily bread. He is thoughtful, wise and philosophical. ये हमें पता चली गया है बिकॉज उसने एडला की जो काइंडनेस थी, जो सिंपैथी थी, उसको वापस उसने उसको पे बैक किया है. He is basically a good person. Poverty has made him hard and a vagabond. Vagabond होता है जो जगह जगह घूमता है इधर उधर, who doesn't have a permanent shelter. उसकी जो essential goodness है, that is awakened by Miss Edla, the Iron Master's daughter. She treats him so nicely that his conscience doesn't allow him to betray the love and respect
given to him by father and the daughter. तो ये हमने शुरू में भी डिस्कस किया था. एंड फाइनली लेट अस सी दैट कि उसका जो हमने डिस्कस किया था कि इफ वी वांट टू बी ट्रीटेड रिस्पेक्टफुली वी हैव टू ट्रीट अदर्स रिस्पेक्टफुली. सो एडला ने यही किया था, उसने उसको रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया था. तो उसके मन में भी उसके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी और उसने उसको बिट्रे नहीं करना चाहा. बिट्रे मतलब उसने सोचा उसने जो लव और रिस्पेक्ट मुझे दी है उसको मैं धोखा नहीं दूं. आई शुड ट्राई एंड लिव अप टू दैट level. This is how he treated himself and then Edla also. Let us discuss about Edla Wilkinson. She is the daughter of owner of Ramsja Iron Work. She is a kind-hearted, considerate and sympathetic girl. She represents all human goodness. Her basic goodness is clearly reflected when she interceded for the peddler. Interceded होता है उसने request करी थी अपने father से that he should be allowed to stay till Christmas evening so that he can have good food and good clothes also. तो उसने उसके लिए request की थी. That is how she was a good person. Even after knowing the truth, she persuades her father to let him stay on a Christmas as a guest. It is her sympathy, generosity and compassion that awakens the essential goodness in the peddler. She is very affectionate, caring host. She gave him good food. उसने अच्छा अच्छा खाना दिया उसको, अच्छे अच्छे कपड़े दिए, and she made his stay very comfortable. उसने उसको क्रिसमस सेरेमनीज ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया और उसकी जो अच्छी क्वालिटीज थी वो उसकी काम में झलक रही थी. और उसने पैडलर को ये भी कहा कि यू आर वेलकम फॉर द नेक्स्ट ईयर क्रिसमस ऑल्सो. She is a very sensitive girl who becomes dejected when she comes to know that the peddler had stolen the crofter's money. Her kind and sympathetic nature turns a thief into an honest man. So let us do the critical analysis of the chapter, dear children. The Rat Trap, it is written by Selma Lagerlof, conveys the message that whole world is nothing but a big rat trap and all the tempting things like wealth and material comforts are baits. So जितने भी material हमारे जो comforts हैं, they are like baits. वो हमें temptations की तरह attract करते हैं अपनी तरफ और जब हम उनमें फंस जाते हैं then it is very difficult to come out from them. This story is about an old disheartened beggar. He is disheartened because he doesn't get good food, he doesn't get shelter, he is like a beggar. And a thief who is transformed into a gentleman by generosity and kindness shown towards him by a young woman, that is Edla. He is a man who has fallen upon misfortune and now resorts to selling rat trap, begging and thievery. He is a very pessimistic होता है निराशावादी. वो बहुत निराशावादी है about this world, whatever he sees around him. And वो कहता है कि it is merely a rat trap. He believes that society tempts us with riches and fine things. कहता है society में जो already इस temptation में आ गए हैं, जो इस bait में फंस चुके हैं, वो औरों को भी tempt करते हैं riches के लिए, fine things के लिए. And जैसे ही हम उनको accept करते हैं riches को, fine things को, joys को, good houses को, that is the end, because then we are caught in a trap and are left with nothing. और उसने कंपैशन भी इसमें दिखाया है कि ओल्ड मैन इज हॉस्पिटेबल टुवर्ड्स अ पैडलर. जो क्रॉफ्टर था वो कितना हॉस्पिटेबल था. उसने ग्रीट किया उसको विद ओपन आर्म्स एंड प्रोवाइडेड हिम फूड एंड शेल्टर डिस्पाइट बीइंग अ स्ट्रेंजर. तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी स्ट्रेंजर्स हमें वेलकम नहीं करते. देयर आर पीपल दोज हु आर एक्चुअली गुड. उसमें एडला विल्किंसन और उसमें जो ओल्ड क्रॉफ्टर है वो भी एक गुड पर्सन में ही आता है, बिकॉज उसने उसको ना जानते हुए भी उसको अच्छे से उसको घर में रखा, रात को पॉरिज खिलाया, टोबैको स्मोक करने को ले दिया. नाउ दिस एक्शन इज नॉट टिपिकल इन टुडेज वर्ल्ड. मेजॉरिटी ऑफ अस वुड टर्न अ ब्लाइंड आई. हम लोग सभी एक ब्लाइंड आई ले देते हैं और क्यों हम कहते हैं कि नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है. Though he helped him, the peddler betrayed him and stole his money. As the peddler ponders on the road of guilt, he soon receives a second action of care from a young girl, that is Edla. She knew the fact that he is not a captain whom he claimed to be. Still, she was compassionate towards him. Throughout the story, the protagonist only believed in the dismal side of human nature, survival of the fittest, and viewed the world as a battlefield. So पूरे स्टोरी में जो प्रोटैगनिस्ट है, जो मेन कैरेक्टर है, दैट इज द रेड ट्रैप सेलर, उसने हमेशा एक निराशाजनक साइड ही ह्यूमन नेचर की उसमें पोर्ट्रे करी है. और ये भी उसने दिखाया है कि जो सबसे फिट है वही इस दुनिया में सरवाइव कर सकता है, और उस दुनिया को, वर्ल्ड को एज अ बैटल फील्ड वो व्यू करता था.
His whole belief system was shattered when he received Adla's love and care. और ये सारा जो उसका pessimistic behavior है, जो ये सोचता था कि ये वर्ल्ड इट इज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप, इट ऑफर्स बेट्स, और जो सबसे ज्यादा फिट है वही सरवाइव करता है, ये सब चीजें उसकी एकदम से शैटर्ड हो गई थी जब उसने एडला का लव एंड केयर रिसीव किया. He enjoyed his first ट्रू क्रिसमस. क्रिसमस में भी जनरली हम शेयरिंग और केयरिंग वाला कॉन्सेप्ट चलता है. इट इज विद एक्चुअली एवरी फेस्टिवल. तो उसने क्रिसमस पे भी यही रिसीव किया था. एडला ने उसको बहुत केयर किया था और उसके साथ अच्छा अच्छा फूड वगैरह शेयर भी किया था. Another lesson the protagonist learns throughout the course of the story is to be considerate towards others. दूसरों के प्रति हमें थोड़ा सा हमें ख्याल रखना चाहिए. और नो इसके एंड में he decides to return the old man's money and write a letter to Edla. He thanked her and also apologizes for lying to her. और उसने सब चीजों के लिए, अपनी गलत कामों के लिए उससे माफी भी मांगी, और उसने उसको ये भी कहा कि मैंने जो भी पैसे चुराए थे, जो भी करा था, वो मैं आपको देके जा रहा हूँ. काइंडली रिटर्न इट टू द ओल्ड क्रॉफ्टर. और उसके लिए एक रेड ट्रैप एज अ क्रिसमस गिफ्ट छोड़ के गया था. एंड फाइनली ही साइंड हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन सैले, बिकॉज इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन ही वुड नॉट हैव एस्केप्ड द वर्ल्ड्स रेड ट्रैप. अगर वो अपने आप को उस स्टेटस में नहीं इमेजिन करता तो वो अपने आप को एक अच्छे इंसान के उसमें भी नहीं इमेजिन कर सकता था. और ही वुड नॉट हैव एस्केप्ड द वर्ल्ड्स रेड ट्रैप, जिसमें वो फंस गया था उसको वो छोड़ नहीं पाता. सो ही एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटिट्यूड. उसने मिस एडला के लिए बहुत सारा थैंक्स करा फॉर बीइंग गुड एंड सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हिम. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग डियर चिल्ड्रन. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.